Dr. Ruth Fow's vision of expanding the services started when she was working alongside patients, and she felt that the patients kept on coming, so she wanted to go to the source, and the source meant that she had to travel all over Pakistan, which she did. And while doing so, she established 157 centers across the country. And just imagine at that time a lady from Germany, a beautiful young lady doctor, working alongside the young boys, men's of Pakistan, and she managed to get their trust and confidence. The efforts of Dr. Ruth Fow and her team paved way to controlling leprosy in 1996. We diversified into other disciplines like tuberculosis, prevention of blindness, mother and child health, community-based inclusive development for the disabled. This year, Pakistan has launched a historical strategy, that is roadmap towards zero leprosy by 2030. So the strategy is from 2024 to 2030, and hopefully we will eliminate leprosy. MALC, you can say it is an oasis in the desert. Yes, we reach out to people who have been forgotten by most. Dr. Ruth Fow, as she said, that love will have the last word. And it's not only that Dr. Ruth Fow worked with full dedication, even her team continues to work in the same spirit as their founder member, the legendary Dr. Ruth Fow, was working. MALC once again pledges that the people will not be left alone as long as the spirit of Dr. Ruth Fow is alive, and the benefactors of the program, which includes both the local and international partners over here. I would like to mention the German Leprosy Relief Association, the people of Germany, and in Pakistan I have a special mention about the generous contribution by the Sindh government. We are committed to empower individuals with disabilities, breaking down barriers and creating opportunities for all. Together with your support, we can continue to break down barriers. At Mari Adelaide Leprosy Centre, we are committed to ensuring health and well-being of mothers and their children. From infancy to adulthood, we are committed to provide essential health care on every step of the way. Our dedicated team of healthcare professionals not only treat diseases like malnutrition and common childhood illnesses, but also empowers mothers with the knowledge and support, helping them to provide the best possible care to their children. Join us in making a difference, one healthy child at a time. We can assure you that together we are building a more healthier and equitable future for us all. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे, उन्हें खुश आमदीद कहता। नाज़रीन, बचपन के अंदर हम एक कहानी सुनते थे अपनी दादी नानी के हवाले से, और वो दादी और नानी हमें जो कहानियाँ सुनाती थी वो परियों की कहानी थी, और इस तरह की कहानियाँ होती थी कि जो एक नसीहती हवाले से होती थी। एक ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ, एक ऐसी लेडी की जिनका नाम डॉक्टर रूथ फाउ था, जो 1960 के अंदर इस पाकिस्तान के अंदर आई और एक ऐसा इदारा MALC के नाम से जज़ाम यानी कोढ़ की बीमारियों का इलाज कर रहा था। जब वो लेडी इस पाकिस्तान के अंदर आई और इन्होंने इस पाकिस्तान में देखा कि इस बीमारी को किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है, तो वो जर्मनी से आने वाली वो ख़ातिन जो कि थी तो जर्मनी की, लेकिन पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत हुई उसे कि उसने पूरी ज़िंदगी इस पाकिस्तान के लिए सर्फ कर दी और जज़ाम का यानी कोढ़ का इलाज किया
और उस वक्त तक इस कोड़ का इलाज किया, उस जज़ाम का इलाज किया, जब से पूरा पाकिस्तान के अंदर इस बीमारी का ख़ात्मा हो गया। इस लेडी को हुकूमत पाकिस्तान ने कायदे आज़म एवार्ड, सितारा इम्तियाज़ और बेशुमार ऐसे एवार्डों से नवाजा है जिनकी अनगिनत कहानी है। और नाज़रीन, इस लेडी के हवाले से मैं हमेशा ये कहता हुआ आया हूँ, ये वो लेडी थी जब मोबाइल का दौर भी नहीं था। इन्होंने ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के कई ऐसे एरियाज़ की तरफ गई और वहाँ इस कोड़ की जज़ाम का इलाज किया और इनसे मोहब्बत करने वाले, इनसे प्यार करने वाले, इनके साथ बिल्कुल मिलजुल कर काम करने वाले ऐसे लोग थे जिसने इनके दिलों के अंदर अपना घर बना लिया था। और एक एवार्ड तो पाकिस्तानी हुकूमत ने दिया और एक एवार्ड उस मोहब्बत करने वाले घरानों ने दिया, उस दुआओं ने दिया कि वो ज़िंदगी भर तक अभी तक वो दुआएं सिमट रही है। वो कहानी एक ऐसी कहानी थी कि जिसके अंदर जितना भी फ़ख्र किया जाए, जितना भी इन्हें अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें बेशुमार एवार्ड से नवाजा, लेकिन दिलों के अंदर जो एवार्ड है वो आज तक ज़िंदा और जावेद है। और हर शख्स जो इनके इलाज से मुस्तफ़ीज़ हुआ और जिस तरीके से वो मुस्तफ़ीज़ हो रहा है, 157 सेंटर अभी भी इस एरिया के अंदर इनके काम कर रहे हैं और 70 साल यानी 69 साल हो गए और 2026 के अंदर MALC जो इदारा काम कर रहा है उसके अंदर तकरीबन जो है 70 साल होने वाले हैं इसके, और 15 से 17 लाख लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाता हूँ जब 2017 के अंदर इनका इंतकाल हो गया और 1990 के अंदर इस चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस टीम का हिस्सा बने और इनके साथ जो काम किए उन्होंने वो वाकई ही इनके साथ किस तरीके से काम किए गए। एक ऐसे एरियो के अंदर अपने घर बार को छोड़कर उनके साथ रहे, जो मोबाइल का दौर भी नहीं था, और वो किस तबीयत की मालिक थी, वो किस तरीके से अपनी टीम को लेके चल रही थी। और ये शख्स जो है इनके साथ साथ मुंसलिक होकर 2012 के अंदर जिन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा MALC के हवाले से मिला और इस पूरी टीम को लेकर वो अपने इस कारवां को कैसे लेके चले उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। और डॉक्टर रोथ फाउक के साथ इनका कैसा ताल्लुक़ रहा, वो किस तबीयत की मालिक थे, उनसे उन्हीं की कहानी सुनते। MALC मेरी एडिलेड लेप्टोसिटी सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहरिन फ्रांस लोबो साहब हमारे साथ मौजूद है। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में मुबारकबाद देता हूं कि माशाल्लाह जितना अरसा आप इस फील्ड से 1990 से मुंसलिक हुए उस इदारे के साथ MALC के हवाले से, उससे तो मैं उस हवाले से भी बात करूंगा और डॉक्टर साहब के साथ आपका कैसा साथ रहा उसकी भी बात करूँ। आप बचपन में किस तबीयत के मालिक थे? क्या आप सोशल कामों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे या खामोश तबीयत थे या बिल्कुल शरारती थे? किस टाइप के शख्स थे? सलीम साहब, आपने एक ऐसा सवाल किया है कि जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, मगर मैं कोशिश कर लूँगा। बचपन से आप यही समझ लेंगे जैसे दूसरे बच्चे होते हैं, हम भी शरारती हुआ करते थे। ठीक है, बस ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे, पढ़ाई मुकम्मल की। फिर दोस्त हमारे ऐसे थे कि घूमना फिरना, देर देर से आना रात को घर, खाना भी देर से खाना। मगर जब मैंने ये इदारा ज्वाइन किया 1990 में, तो उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर फाउक कौन है। अच्छा। तो मैं पार्ट टाइम करता था, तो शाम को आता था मैं। तो पहली मर्तबा वो एक खातून आई मेरे पास, उन्होंने हाथ बढ़ाया, अपना नाम लिया फाओ, मैंने बोला लोबो। वो अपने तो जो जिनके साथ मैं काम कर रहा था वो आया भाग भाग के, बोला कि डॉक्टर फाओ से मिले आप? वो आई थी। तो मैंने एक खातून आई थी यहाँ पर, कह रही थी फाओ, तो मैंने मिला। तो बोला आप उनको नहीं जानते हैं? तो मैंने बोला मैं नहीं जानता हूँ। ये नहीं कि ये डॉक्टर फाओ उस वक्त मशहूर नहीं थी, उस वक्त भी मशहूर थी। अच्छा। मगर मेरी जो कंपनी थी ना, वो ऐसे लोगों के साथ थी जो इन चीज़ों के बारे में जिनको मालूम नहीं था। कोई बचपन के अंदर कोई खेल से इंटरेस्टेड थे आप? कोई खेल खेलते थे या शरारतें करते थे या गली गुचों के अंदर? उसी तरीके से आप कह रहे थे कि बचपन तो बहुत सारे लोग शेयर करना भी चाहते, बहुत सारे लोग शेयर करना नहीं चाहते थे। नहीं, देखिए हमारे दौर में तो सारे मौसमी खेल होते थे, ठीक है ना।
गिल्ली गिल्ली डंडा हो डंडा गया, और गिल्ली ये- डंडा हो गया, लट्टू हो गया, फिर कंचे खेलते थे, फिर क्रिकेट भी होता था, हॉकी, फुटबॉल भी खेलते थे। एरिया कौन सा था, मतलब किस एरिया के अंदर आप? देखिए मैं इस वक्त मैं भी यही बता रहा था साथी को मैं आ रहा था, जिस एरिया में आपका ऑफिस है मेरा बचपना यहाँ गुजरा है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर गुजरा, फिर सदर में गुजरा, तो यही थे हमारे, जहाँ हमारी अपनी कम्युनिटी होती है हम कोशिश करते हैं वहीं पर रहते हैं ना। अच्छा, इस जवानी तक के पीरियड के अंदर कोई ऐसा वाक़या, बचपन में कोई ऐसा वाक़या जिसको आप शेयर करना चाहेंगे, आपके वालिद के हवाले से, आपकी माँ की मोहब्बत के हवाले से, क्या सीखा आपने अपनी माँ से, अपने बाप से? देखिए डिसिप्लिन तो वालिद से सीखा मैंने, इसलिए कि वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, उनको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो बस आंख दिखाते थे, हम डर जाते थे। तो कितने लोग उनकी आंखों को देख रहे होते थे, मतलब कितने आप लोग भाई बहन वगैरह थे? हम 5 भाई 2 बहन हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं वो कुछ भाई? एक मेरे से जो बड़ी बहन थी, 1 साल मेरे से बड़ी थी, उनका इंतकाल हो गया कोविड में। अच्छा बाकी हम जो दूसरे भाई और बहन हम सब काम करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि कोई नशे व फराज वाला कोई वाक़या जो स्कूल के अंदर आपने किसी को मारा पीटा और घर पे आके फिर शरारतें के हवाले से कंप्लेन हुई हो, या कुछ स्कूल के टीचर्स ने, मैडम ने कोई कंप्लेन की हो? वैसे अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से मैं ये तो नहीं कहूँ, वैसे मैं गुस्से का बहुत तेज़ था, मगर मेरी जो जिसामत थी वो मुझे परमिशन नहीं देती कि मैं किसी से लड़ लूँ। ठीक है, तो अक्सर हम ऐसी जगहों पे दिमाग से काम लेते थे, अच्छा, तो बगैर किसी से लड़े झगड़े अपना काम निकाल देते थे। खेल के अंदर कौन सा खेल पसंद? मुझे खेल में तो शुरू में तो हॉकी था, फिर हॉकी में जब हम हारने शुरू हो गए वहाँ से भी हमारा शौक़ ख़त्म हो गया। फिर क्रिकेट एक दीवानगी की हद तक, मगर अब ज़रा क्रिकेट से मैं विड्रॉ कर गया हूँ, इसलिए कि जज्बाती हो जाते हैं जब पाकिस्तान हारते हैं, तो इस वजह से अब क्रिकेट भी देखना छोड़ दिया। अच्छा, मैं आपसे नशे व फराज के हवाले से भी बात करने लगा। आपने MBA की डिग्री हासिल की, माशाल्लाह, बेशुमार अवार्ड जीते। जब पहला अवार्ड आपने जीता वो कौन सा सन था, और क्या कैफियत थी और क्या खुशी थी आपके माँ बाप की, आपकी अपनी? वैसे पहला अवार्ड तो मुझे ऑस्ट्रिया में एक मिसियो नाम का इदारा है, उन्होंने दिया था। ये उन फलाई इदारों के हेड को देते हैं कि जिन्होंने 20-25 साल से ऊपर काम किया इस फील्ड में। नहीं, मैं उस तरफ तो आऊँगा, उस अवार्ड्स की तरफ भी बात करूँगा आपसे, पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी के, लेकिन स्कूल लाइन के अंदर भी आपको मैंने देखा है कि आप कुछ पढ़ रहा था मैं, आपको वहाँ भी कुछ अवार्ड्स मिले थे यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी? नहीं, स्कूल में मुझे नहीं मिले। MBA में गोल्ड मेडल मिला था। जी, उसी के अंदर मैं कह जी। रहा हूँ, उस वक्त जो गोल्ड मेडल मिला था आपको, उस वक्त क्या कैफियत थी आपकी? कैफियत तो ये थी कि मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ हो गई थी, इसलिए अच्छा। मुझे जो गोल्ड मिला था, उस वक्त मेरी उम्र 42 ईयर्स थी। अच्छा, ठीक है ना, तो वो मुझसे नाराज़ हो, इसलिए मैं अकेला गया, अपना गोल्ड मेडल लेके आ गया चुप के। शादी अपनी पसंद की या माँ बाप की पसंद की? नहीं, शादी तो मेरी अपनी पसंद की। अगर 2 शादियाँ करने का मौका मिले तो क्या 2 शादी कर लेंगे आप? ये तो सोचिए बगैर मैं कह सकता हूँ कि नहीं है। नहीं। वजह कि एक पहली वाली बहुत प्यारी है या बहुत अच्छी है, या नहीं, देखें, डर लग रहा है उनसे कि अगर ये कर डर की लूँगा बात तो? नहीं है। देखें, एक होता है कि एक रिलेशनशिप होता है, आपने जब किसी के साथ एक तय कर लिया कि इनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, फिर जब बच्चे आ जाते हैं आपको ये भी सोचना पड़ता है। तो अभी कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरे 2 बच्चे थे, बेटी बड़ी, बेटे का इंतकाल हो गया था 25 साल की उम्र में। अच्छा, ओ 25 साल के? जी। तो क्या बीमारी के हवाले नहीं, से? वो स्पेशल चाइल्ड था। अच्छा। हाँ, तो डॉक्टरों ने तो कहा था वो 5 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा, मगर 25 साल उन्होंने। माशाल्लाह। अच्छा, इस पर गुफ्तगू करते, ब्रेक का इशारा हो रहा है, फिर इसके बाद तसल्सल के साथ बात करते हैं। नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लोगों के बाद।
मरतबा फिर फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथियानी आपको खुशामदीद कहता है। डॉक्टर साहब, आपसे बात हो रही थी माशाल्लाह, जिस तरीके से हम तो आपको डॉक्टर ही कहेंगे माशाल्लाह, जिस तरीके से आप फील्ड से मुंसलिक हैं और जिस तरह लोगों को देख रहे हैं। शादी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ा। अगर दूसरी शादी का मौका मिलता है तो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा ना, और अगर बीवी के डर की वजह से मना कर रहे हैं या हालात की वजह से या लोगों को शादी जो दूसरी की हुई है उनके असरात की वजह से मना कर रहे हैं या वैसे ही? नहीं, वैसे ही अच्छा, अब काम में ऐसे लग गए हैं कि इन चीज़ों के बारे में फिर सोच नहीं नहीं आप सकते। अगर कहें तो ये क्लिप्स हम आपकी वाइफ तक नहीं पहुंचाएंगे, अगर आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते शादी दूसरी। नहीं नहीं, वैसे तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मतलब ऐसा डर वर नहीं है, खौफ नहीं नहीं है नहीं ना? ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ डॉक्टर साहब के हवाले से कि जिस तरह वो 1956 का आपका ये इदारा, फिर 1960 के अंदर ये आई और 1990 के अंदर आपने इस इदारे को ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब के हवाले से मैं आपसे मालूम करूँ, वो किस तबीयत की मालिक थी, वो कैसी थी? जबकि आप कह रहे थे कि मैंने तो उनसे हाथ मिलाया, मुझे खुद नहीं पता था तो क्या था। तो मतलब वो अपने आप की नुमाइश वगैरह नहीं करती थी, खामोशी से आती थी, किस तरीके से आती थी वो? देखें, वो इतनी अजीम खातून थी, तो उनका मैं यही कहूँगा कि इतनी मतलब ना अजीम खातून होने के बावजूद जब अपनी टीम के साथ होती थी ना, तो कोई ये फील नहीं कर सकता कि ये डॉक्टर फॉ इतनी अजीम खातून है, मतलब इनको इतने अवार्ड मिले। बिल्कुल आम जैसे लोगों के साथ बैठती थी, खाना पीना बिल्कुल उनका सादा खाना होता था, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सादा, और बल्कि सादा भी क्या कहूँ कि बहुत वो आधा पेट से कम भी खाना खाती अच्छा, थी। कभी उन्होंने कोई अपनी बात बताई कि मैं पाकिस्तान आई थी और मैंने ये देखा, इस वजह से मैं यहाँ रुक गई, और क्या कोई कभी आपसे कोई चीज़ें ऐसी शेयर हुई? एक मरतबा मैं जर्मनी में उनके साथ था, तो मैंने डॉक्टर फाओ को कहा कि ये इतना खूबसूरत मुल्क को छोड़ के आप पाकिस्तान में आने का आपने क्यों सोचा? उन्होंने कहा, मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो मेरी एक सहेली थी, तो वो पैसे जमा कर रही थी गाड़ी ख़रीदने के लिए। उन दिनों में वॉक्सवैगन होती थी जिसको येलो कलर की बीटल कहते थे। यस। तो कहता है उसने वो पैसे जमा किए और बीटल ख़रीदा, वो गाड़ी ख़रीदी उसने। फिर उसके 2 महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद वो फिर डॉक्टर फाओ से बात करने की, कि गाड़ी से मैं अभी ना मेरा जी भर गया, मैं कोई और गाड़ी ख़रीदूँगी। तो डॉक्टर फाओ ने यही सोचा कि ये ऐसे लोग हैं हमारे साथ कि जो सोच रहे हैं कि गाड़ियाँ बदलूँ मैं, कहने कि वहाँ पर शायद मेरी ज़रूरत नहीं थी उन लोगों को। अच्छा, मैं ऐसे मुल्क में जाना चाहती जहाँ लोगों को मेरी ज़रूरत हो। क्या बात है। तो फिर उसने सोचा कि इंडिया चलें, मगर इंडिया का वीज़ा उन दोनों में मिलता नहीं था। अच्छा, तो उनकी एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन की मेंबर थी वो, डॉटर्स ऑफ द हार्ट ऑफ मैरी, उनका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। तो यहाँ पर आई, वो सिस्टरों को कहा कि, उन्होंने कहा कि यहाँ इंडिया का वीज़ा मिल जाएगा, हम दिला देंगे। तो मैक्लॉयड रोड में एक कॉलोनी हुआ करती थी जहाँ हमारे ये मर्ज़ के लोग बहुत थे। तो हाँ जी, जज़ाम के ना। तो उन्होंने कहा हम वहाँ पर काम करें, आप हमारे साथ आएँ जब तक आपका वीज़ा नहीं। तो डॉक्टर फाओ उनके साथ गई। तो जब उस कॉलोनी में वो एंटर हुई तो वो गटर का पानी उबल रहा था, फिर उसी के अंदर चूहे मरे हुए हैं। तो जब वो वापस आई तो वो कह रही, मुझे मतलब कराहत जैसी हुई ना कि मैं कहाँ चली गई थी। तो उनको कहा कि मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती हूँ। मगर जब वो रात को सोई, हो सकता है उनको एक पुकार हुई, कॉलिंग हुई कि हो सकता है मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि इनके साथ काम करूं। सुबह उन्होंने दूसरे सिस्टरों को कहा, मैं यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो उन्होंने ये वाली आपको बात बताई कि इस तरीके से, फिर उन्होंने जो MALC ये है क्या, किस तरह इस इदारे का नाम रखा गया और उसमें क्या ऐसी चीज़ है? देखें, ये जो डॉटर्स ऑफ द हार्ट ऑफ मैरी जो कॉन्ग्रीगेशन है, उनकी जो सरबराह थी उनका नाम था मारी एडलेड। जी जी। तो उन्होंने इस नाम से इस इदारे को रजिस्टर कराया 1956 में। जी। डॉक्टर फा आई 1960 में। जी। जब वो आई और वहाँ जब इलाज मरीज़ों को देखती थी, मेडिकल डॉक्टर थी, आप अंदाज़ा लगा दें, वो बैंडेज खुद करती थी, उनके जो ना ज़ख़म क्लीन करती थी। अच्छा। तो मैं अक्सर अपने डॉक्टरों को ये कहता हूँ कि अब हमारे कितने डॉक्टर्स हैं जो आज उनको कहें कि
ये इसके ज़ख़म साफ़ करें जिसमें मैगेट्स जो कीड़े होते हैं उनको निकालें, शायद नहीं करेंगे, कहेंगे पैरामेडिक्स हैं। तो डॉक्टर फॉ उस वक्त वो काम करती थी। क्या बात है। फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये काम कर रहे हैं, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, लोग आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से आते रहेंगे तो ये इस तरीके से कंट्रोल नहीं होगा। तो एक पुरानी जीप हुआ करती थी और एक ड्राइवर को उन्होंने लिया और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ट्रैवल करने शुरू किया। वहाँ फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले, कहा कि अभी आप लोगों के यहाँ से बहुत मरीज़ आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। इसी तरीके से 157 सेंटर्स इस्टेब्लिश हुए हैं। और हमारे जो इदारे की जो एक बड़ी मतलब खूबी यह है कि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें से 90% जो स्टाफ जो थे वो गवर्नमेंट के थे। अच्छा, 10% आप ये कह सकते हैं कि एनजीओ के अपने थे। अच्छा, नेटवर्क उन्होंने इस तरीके से किया। ट्रेनिंग जो थी हमारे यहाँ इदारों में लेप्रेसी टेक्नीशियन की, वो हमारा इदारा सिर्फ देता है। और गवर्नमेंट में एक प्री कंडीशन है, जब तक MALC का लेप्रेसी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट ना हो तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। अभी भी इसी तरह इसी तरह चल रहा है। अच्छा, 1990 के अंदर आपने जब इसे ज्वाइन किया तो आपको सबसे पहला सफ़र इनके साथ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ? सबसे पहला हमारी एक बजट मीटिंग होती थी। तो बजट मीटिंग में हमारा डायरेक्टर फाइनेंस होते थे। तो मैंने ज्वाइन किया तो उनको मालूम था मैं गवर्नमेंट से आया हूँ, तो इनको भी मालूम है बजट के बारे में। तो उस वक्त वो डायरेक्टर फाइनेंस को डॉक्टर फाउ ने कहा कि इस मीटिंग में मैं आपके साथ आऊँगी। तो शायद वो मुझसे बेहतर जानता था डॉक्टर फाउ के वो काम किस तरीके से करती हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर फाउ अगर आप जा रही हैं तो फिर मेरी ज़रूरत नहीं है, आप ये लोबो हैं एक नया आया है, आप उनको लेके जाएं। तो उन दिनों में जो सफ़र करते थे मेरी एंटाइटलमेंट बाय एयर की नहीं थी। अच्छा। तो कराची से एक और साथी था जो टाइपिंग करता था, उनको वो और मैं क्वेटा गए। तो 5 दिन, दूसरे दिन 7 बजे नाश्ता करके, एक कमरा था, एक वॉशरूम था, वहाँ हमने नाश्ते के बाद शुरू कर दिया, खाना भी वहीं खा रहे हैं। तो 5 दिन सुबह हम 7 बजे शुरू करते थे, रात को 11-12 बजे ख़त्म करते थे। दूसरे दिन जब हमने निकलना था, डॉक्टर फाउ ने मुझसे पूछा आपने क्वेटा देखा, कैसा लगा आपको? अब मैं समझा कि मजाक कर रही है मुझसे कि सुबह से लेकर रात तक तो इसके सामने बैठा हूँ, मैं क्वेटा कहाँ से देखूँगा। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद हम लाहौर गए, लाहौर में हमारा ऑफिस था। फिर हम पिंडी आए, पिंडी, फिर उसके बाद गिलगित, पेशावर, मुजफ्फराबाद, यही 5-5 दिन 6-6 दिन की मीटिंग होती थी। तो ये ऐसा सफ़र था कि बस वो हमेशा याद रहेगा। मतलब कोई कभी डांट पड़ी उनसे, कभी इस तरह की कोई चीज़ के दिल बर्दाश्त, अरे यार मैं कहाँ फंस गया, कोई इस तरह की चीज़ आई जहन के अंदर? उसकी एक और खूबी ये थी कि वो कभी डांटती नहीं थी। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है ना, डांटती नहीं थी। आप उनसे 10 बार पूछें, वो 10 बार आपको उसी जज्बे के साथ ना, पैशन के साथ आपको समझाएगी। पाकिस्तानी लोग इनसे कितनी मोहब्बत करते थे। मैंने देखा जब मैं आपसे बात भी कर रहा था तो लोग जो कहते थे कि उनके साथ इतना ज्वाइन हो जाते थे, ऐसे जैसे बस वो उनकी बहुत ही करीबी है, इसी तरह की कोई कैफियत थी? देखिए, मैंने ये खुद महसूस किया था कि जब मैं उनके साथ ट्रैवल करता था और मरीज़ों के घर जाते थे, उनको एक एक मरीज़ का नाम मालूम था, उनके बच्चों का मालूम था, कौन सी क्लास में किसकी शादी हुई, और उस वक्त भी कुछ नहीं तो 50,000 के करीब मरीज़ थे। तो अच्छा, इतना बड़ा इदारे के अंदर इनका काम करना, और जबकि उस वक्त मोबाइल का दौर भी नहीं था, तो क्या कभी इन्होंने कहा कि ये नुमाइश के हवाले से कोई लोग इनसे कहता था कि आपकी तो कोई इतनी ज़्यादा कोई वो भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग 50,000 तो आप ये कह रहे हैं, अब ये 50,000 के रिश्तेदार को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 2.5-3 लाख तो वैसे ही लोग जानने वाले हो जाते हैं। आप तो कह रहे हैं कि कोई इनको जानने वाला नहीं था, लेकिन मैं तो कहता हूँ इनसे तो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थे। देखिए, उनकी एक सिंपल फ़िलासफ़ी थी, ये नहीं कि वो कहती थी, जो मैंने महसूस किया था वो मज़हब से बालातर थी। हम कहीं पर भी जाते थे, देखिए हमारा जो कल्चर है, चाहे हम KP में बैठे हैं या मुजफ्फराबाद में, हम ज़मीन फर्श पे बैठते थे। तो पूरा दिन हमारी मीटिंग वहीं पर होती थी। अच्छा। शुरू करते थे तो अपने सर पे चादर ले लेती थी। अच्छा। और किसी भी जो टीम मेंबर उनको कहते थे दुआ करें, वेरी गुड। फिर वो दुआ से शुरू करती थी। माशाल्लाह। और जहाँ पर हमारे जैसा हेड क्वार्टर्स में, वहाँ तीनों मज़ाहिब के हैं, हिंदू,
क्रिश्चियन मुस्लिम, हम कोई भी सेशन शुरू करते हैं तो उसमें कुरान की तिलावत होती है, बाइबल की होती है और इनकी भगवत गीता से। अच्छा। तो उसमें कोई ये फील नहीं करता है कि कोई तासुब नहीं है, कुछ नहीं है। लोग रिस्पेक्ट भी इसलिए करते थे कि देखें, एक तो ये उनकी कल्चर को रिस्पेक्ट करती थी, फिर वो उनके लिए एक लीडर भी थी, उनकी एक टीचर भी थी। उनके किसी भी अगर टीम के अगर घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम हो, तो जब तक उसका मसला हल नहीं होता था वो फिर चैन से नहीं बैठती थी। अच्छा, ठीक है, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान उसी मोहब्बत, उसी प्यार, उसी अपनाइत के साथ खुशामदीद कहता है। जी, आपसे बात हो रही है और इस हवाले से डॉक्टर साहब के हवाले से बात हो रही थी। तो डॉक्टर साहब के इंतकाल के बाद जो है, जब ये खिला बहुत ही ख़तरनाक हद तक जो है, क्योंकि वो जब पूरी टीम को लेके चल रही थी और एक टीम का मेंबर, टीम का कैप्टन साथ होता तो बड़ा हौसला होता है। और इनके इंतकाल के बाद इतने सारे इदारे जो है वो कैसे रन करे थे? आपने कब उनको ज्वाइन किया एज ए CEO के हवाले से, या उससे पहले की जो टीम थी उनके अंदर क्या क्या मसाइल का शिकार हुए? लेकिन डॉक्टर फाउ जब 65 साल की हो गई, तो मैं जब सूबे में था तो मुझे किसी ने कहा कि डॉक्टर फाउ MALC छोड़ के जा रही है। अच्छा। तो मुझे पता चला, मैं फ़ौरन मैंने बैग छोड़ा और डॉक्टर फाउ के कमरे में गया। तो अपना बैग पैक कर रही थी। तो मैंने बोला, डॉक्टर फाउ ये क्या है? तो कह रहा, हमारे जो कल्चर में, जो यूरोपियन कल्चर है, कि 65 के बाद आपको हैंड ओवर करना पड़ता है। अच्छा। तो मैं अभी इस इदारे को छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए कि जब तक मैं जाऊँगी नहीं आप लोग इंडिपेंडेंट ना होंगे। तो मैंने कहा, देखिए डॉक्टर फाउ, अगर आप कल्चर की बात करें, हमारे एक पाकिस्तानी कल्चर है, वो क्या है कि बेटा घर से जा सकता है, बेटी उनको जाना है शादी करके चले जाती है। गहराई की बात की आपने। ठीक है, मगर हमारे यहाँ अगर माँ घर छोड़ के चले जाए ना, तो हमें गली मोहल्लों में लोग पूछेंगे आपने अपनी वालदा के साथ क्या किया कि वो घर छोड़ के चली गई। वेरी गुड। तो मैंने कहा, इससे ना इदारे की भी बदनामी होगी। तो उन्होंने देखा मुझे, आप सही कह रहे हो। मैंने बिल्कुल। तो अनपैक किया, बोला कि चलो लेट्स स्टार्ट द हैंडिंग ओवर प्रोसेस। और वो हैंडिंग ओवर प्रोसेस आप लगा दें, उस वक्त तो 65 की थी, उनका इंतकाल हुआ उस वक्त ऑलमोस्ट 88 थी। ओह माशाल्लाह। मगर उन्होंने फिर टीम को तैयार करने शुरू कर दिया। और आपने ज्वाइन एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव 2012 में? 2012 में मैंने किया था। तो जी इनके साथ एक सीखने का मौका ऐसा था कि जैसे अक्सर, ये शायद मुझ में भी है, ये क्वालिटी तो नहीं कहूँगा, ये एक नेगेटिव चीज़ होती है कि हम किसी जूनियर को, जूनियर से नो नहीं सुनते। हम हमेशा कहते हैं कि जी जनाब हो। हमारे जूनियर, वो ये कहती थी कि मुझे जी जनाब लोग पसंद नहीं हैं। वेरी गुड। जूनियर भी अगर कह दे कि डॉक्टर फाउ आई डोंट अग्री विथ यू, वो खुश होती थी। पाकिस्तान से बाहर वो गई, वापस आई, कुछ इस तरह का भी सिलसिला जारी है सारी रहा उनका? नहीं, पाकिस्तान वो हर साल जाती थी, जर्मनी जाती थी, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में फंड रेजिंग के लिए जाती थी। मगर वो अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिलती थी वो। अच्छा। कुछ फैमिली मेम्बर्स नाराज़ थे कि डॉक्टर फाउ तो अभी हमें टाइम ही नहीं देती हैं। उनके एक भांजा था, मेरी उम्र का था, उससे जब मिला था, एक अवार्ड मिला, तो वो भी आ गए थे कुछ फैमिली। तो मैंने बोला, डॉक्टर फाउ से बोला कि मैं डॉक्टर फाउ से 28 साल के बाद मिल रहा हूँ। ओहो। अच्छा। वो नहीं मिलती थी। वजह ये थी कि एक तो वो बड़ी फोकस थी कि हमने क्या करना है। फिर वहाँ पर जो थे ना, वो वॉलंटियर्स होते थे जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के हमें लेके जाते थे।
उनके घरों में रहते थे हम, इस तरीके से पैसे बचाती थी बहुत वो। एक मरतबा रास्ते में वो जो साथ लेके जा रहा था वॉलंटियर, उन्होंने कहा डॉक्टर फाऊ की बहन का घर यहाँ से आधा घंटे के डिस्टेंस पे। तो मैंने डॉक्टर फाऊ से पूछा कि आपकी बहन को मिल लेना आप, तो कहा नहीं हमें बहुत काम है। फिर शाम को मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं गए? बोला देखिए मिस्टर लोबो, ये जो वॉलंटियर्स हैं ये अपनी गाड़ी में अपना पेट्रोल डाल के हमें लेके जा रहे हैं, अब इनके मतलब खर्चे पे मैं कहूँ कि मैंने अपने फैमिली मेम्बर से मिलना है। कितनी गहराई है। अच्छा, इनको फंड रेजिंग के हवाले से प्रॉब्लम होती थी? जैसे अगर बाहर ममालिकों के अंदर से भी जब इतनी शख्सियत वाले लोग थे तो लोग बिला झिझक देते होंगे, पाकिस्तान के लोग भी कैसे देते थे इनको फंड के हवाले से? देखें जो उनकी शख्सियत थी, तो जब यूरोप जाती थी वो जो टॉक्स करती थी अलग अलग सिटीज़ में जाके, टाउन्स में, वहाँ पर जो फंड्स मिलते थे उस फंड से मोर देन 37 कंट्रीज़ को फंडिंग होती थी, माशाअल्लाह, जिसमें से एक पाकिस्तान था। मगर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जितने पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है आप लोग वो पहले हमें देंगे, फिर उसके बाद आप किसी को भी दे सकते हैं। वेरी गुड। लेकिन आप ये देखें कि आप माशाल्लाह 157 इदारे चला रहे हैं माशाल्लाह, और 70 साल का ये अरसा हो गया, 15 से 17 लाख लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो आप इतने बड़े एरिया को देखते कैसे, किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं, कैसे चलाते हैं, कहाँ तकालीफ हो रही है, कहाँ परेशानी आ रही है आपको? देखिए शुरू जब मैं उनके साथ ट्रैवल करने लगा तो हमारे यहाँ कोई रीजनल ऑफिसेज नहीं थे या प्रोविंशियल हेडकोार्टर्स नहीं थे। अब कुछ भी मसला होता मुझे यहाँ से कराची से जाना पड़ता था, फिर कराची से जाना ये होता था कि मैं बसों में बैठ के जा रहा हूँ पैसे बचाने, ट्रेन में बैठ के जाना। तो मैंने फिर एक मरतबा डॉक्टर फाऊ को कहा देखें इस तरीके से हम पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने फिर रीजनल हेडकोार्टर्स बनाए। रीजनल जैसा एक रीजन है हमारा नॉर्थ, वहाँ पर पिंडी में एक बना दिया। फिर प्रोविंशियल हेडकोार्टर्स जैसे हमारे सिंध में हमने हैदराबाद में रखा था, ये कराची तो वैसी मतलब एक हेडकोार्टर था। फिर क्वेटा में रखा, मुजफ्फराबाद में, गिलगित में, बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, क्वेटा में। तो इस तरीके से हमने जब ये बनाया तो फिर वहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स हमने अपॉइंट करने शुरू किए। उस तरीके से फिर काम चलता रहा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि कितने शोबा जात के अंदर इस वक्त काम हो रहा है आपका ना, और इन्होंने जो आगाज़ किया था फिर वो किस तरह बढ़ता बढ़ता चला गया? आप मुझे बता रहे थे जब प्रोग्राम के ब्रेक पे जाने लगे थे कि सिर्फ एक ही बीमारी को उन्होंने नहीं देखा, फिर उसके बाद मुसलसल और भी बीमारियाँ जैसे टीबी ये वो सब नज़र आई, उस पर भी इलाज शुरू हुआ, और ख़ासतौर पर आप माजूर बच्चों का भी इलाज कर रहे हैं, तो ज़रा उस बारे में भी बताइएगा। देखिए ये आपने अच्छा सवाल किया, इसलिए कि आपके तवज्जुह से मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि MALC सिर्फ लेप्रेसी प्रोग्राम नहीं है। हमने लेप्रेसी के नाम से या लेप्रेसी के काम की वजह से हमने शुरू किया। लेप्रेसी कंट्रोल हुआ पाकिस्तान में 1996 में, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के लिए टारगेट रखा था कि 2000 तक का इनको करना चाहिए कंट्रोल। हमने 4 साल पहले किया माशाल्लाह, वेरी गुड। मगर जब कंट्रोल हुआ तो कंट्रोल का मतलब ये नहीं था कि पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में हो गया। जैसा हमने गिलगित नॉर्दर्न एरियाज़ में कंट्रोल किया तो वहाँ साथ हमने टीबी शुरू कर दिया, इसलिए केसेस तो आ रहे थे। कंट्रोल का मतलब ये है अगर 1 लाख की पॉपुलेशन में आपको 1 या 1 से कम मिल रहा है तो कंट्रोल में आ गया। फिर मुजफ्फराबाद में भी हमने टीबी शुरू किया, सिंध में हमने प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस शुरू किया, KP में हमने ट्यूबरक्लोसिस के साथ। फिर ऐसा जैसे जैसे नीड बढ़ती गई, जब हम किसी एरिया में जाते थे हम सिर्फ देखते नहीं थे कि वहाँ पर लेप्रेसी का है, अगर वहाँ किसी को टीबी हो गया तो हमने वो प्रोग्राम वहाँ शुरू कर दिया। हम कम्युनिटीज़ की नीड को देख के हमने प्रोग्राम को फैलाया। तो अब मतलब अल्लाह का शुक्र है कि हम लेप्रेसी के साथ ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें तकरीबन 12,000 से ज़्यादा मरीज़ों को देखते हैं, न्यू पेशेंट्स ट्रीट करते हैं। ब्लाइंडनेस में हम कैंप्स लगाते हैं ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ पर कोई सर्विसेज नहीं है, बलूचिस्तान के बिल्कुल। तो लोग क्या कहते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई इस जगह पे ये बीमारी है तो आप आ जाएं, या आप लोग खुद ही इसका जांच पड़ताल करते हैं कि कैसे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या इसका क्राइटेरिया बनाते हैं आप? ये जब हमने काम शुरू किया था तो उस वक्त लेप्रेसी टेक्नीशियन जो हम ट्रेन करते थे बहुत से ऐसे इलाके में जहाँ पर लोग मैट्रिकुलेट भी नहीं होते थे। अच्छा। जैसा आप बलूचिस्तान के बिल्कुल इसमें चले जाएँ,
पहाड़ों में, वहाँ पर कहाँ मिलेगा। तो वहाँ पर जो कबीले होते तो उनका जो एक सबसे पढ़ा लिखा बंदा होता उसको ले लेते हम, ट्रेन करते थे। उससे 2 एडवांटेज हुआ, वो मकामी बंदा था, उनके लिए सफ़र करना भी आसान था, फिर वो अपने एरिया में वो डॉक्टर कहलाने लगा। अच्छा, इस तरीके से सारे जो हमारी सिलेक्शन थी ये उनके मकामी लोग थे। पाकिस्तान में कोई भी मसला हो, स्ट्राइक हो, कुछ भी हालात हो, काम हमारा नहीं रुकता, इसलिए कि जो हमारे वर्कर्स है वो मकामी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो मकामी लोग, ये काम कभी नहीं रुकेगा। हम यहाँ से अगर निकले भी नहीं, काम हमारा हो रहा है। ठीक है, उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लोगों के बाद। एक मतलब फिर फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथियानी खुश आमदीद कहता है। लोगों साहब, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये तो काम के अगर हम दायरा कार को देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ शोबाजात में आप जो मरीज़ है उनको ट्रीट करें, ये जो नागानी आफत आ जाती थी पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे ज़लज़ला, इसके अंदर भी आप लोगों की कोई कंट्रीब्यूशन होती थी? ये हमारे प्रोग्राम जो था शुरू से, जिन इलाकों में हम काम करते थे, लोग हमें जानते थे, कभी भी कोई कैद साली हो गई या कुछ मसला हो गया तो हम डोनर्स से फंडिंग लेते थे, उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी जैसा राशन दे दिया उनको, कभी टेंट्स दे दिए उनको। फिर जब भी ये 2005 में ज़लज़ला आया था, उसमें हमने 4,500 के करीब घर बना के दिए थे, माशाल्लाह, केपी में और आज़ाद कश्मीर में। अच्छा, और उसके साथ टेंट्स मालूम नहीं कितने हज़ारों में टेंट्स दिए थे, राशन दिए, फिर उनको लाइफ स्टॉक दिया कि कहीं ना कहीं वो अपने माल मवेशी जिनके हो गए थे, फिर कुछ बिज़नेस हेल्प दिए। फ्लड्स भी जब आया था उसमें भी हमने 5,000 के करीब घर बनाए थे, माशाल्लाह। और वही सिंध से लेके जहाँ पर आया था पट्टी में, सारों को ये चीज़ें दी थी हमने। अच्छा, आपको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जर्मनी के अंदर, तो क्या महसूस हुआ, क्या कैसा लगा कि वाकई मैंने जो ये फील्ड ज्वाइन की है, अल्लाह ने जो मुझे इज़्ज़त दी है, तो उस हवाले से क्या आपकी फीलिंग थी? देखिए, मैं कभी कभार यही सोचता हूँ कि जब मुझे पहला अवार्ड मिला था, वो मैं 2021 में मिला था ऑस्ट्रिया में, मिसियो अवार्ड। तो वो तकरीबन मैं रिटायर हो चुका था। अच्छा, तो बोर्ड ने मुझे एक्सटेंशन दी। फिर मुझे जो सेकेंड अवार्ड मिला सितारा इम्तियाज़, वो 2023 में। माशाल्लाह। फिर उसी इसमें 2024 में मुझे फिर ये जर्मन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो होता है वो अवार्ड मिला। अब महसूस तो मैं यही कहूँगा कि देखें, काम टीम कर रही होती है। ये जो रिकग्निशन है, ये मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी टीम की रिकग्निशन है। ये तो मैं एक फर्द तो कुछ भी नहीं है, तो टीम है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम को एक रिकग्निशन मिली है। सही। और प्रोग्राम कौन है? हमारी टीम है। ये माजूर बच्चों पे भी आप माशाल्लाह स्पेशल बच्चों पे भी काम कर रहे हैं, उसका भी ट्रीटमेंट करें। इतना बड़ा इदारा, 157 चीज़ों को आप लोग समेट के चल रहे हैं, और माशाल्लाह कई जगहों के ऊपर इतना बड़ा फंड्स, ये आता कहाँ से आपके पास, किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं? और अभी इस वक्त अगर मैं ये आपसे सवाल करूं कि अगर कोई आपके साथ मुंसलिक होना चाहता है तो कैसे ज्वाइन करे, कैसे आपके इस कामों को और मज़ीद माउनत के साथ चलाएं कि भाई हम भी इसके साथ इतना अपना हिस्सा डाल सकते हैं, तो किस तरीके से किया जा सकता है इसको? देखिए, जब प्रोग्राम शुरू हुआ था काफ़ी अरसे तक, 10-20 साल तक मोर देन 90% फंड्स आते थे वो जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज से, और एक इदारा है जर्मन लेप्रेसी रिलीफ एसोसिएशन, वो देता था। मगर जैसे जैसे प्रोग्राम एक्सपैंड होता गया, तो ये नहीं कि उन्होंने फंडिंग कम कर दी। एक दौर में उनका शेयर 95% होता था, आज उनका शेयर है तकरीबन 15-20% है। ये आज से 4 साल 3-4 साल पहले
ये जब यूक्रेन का मसला हुआ था तो हमारे जो इंटरनेशनल फंडिंग 40% स्लैश हो गई थी। ओहो, तो उस वक्त हम परेशान हो गए थे कि देखिए लेप्रेसी कंट्रोल का हम नारा भी लगाने वाले हैं कि एलिमिनेशन का, और अब ये मसला हो गया। तो सिंध गवर्नमेंट आगे आई और बाकायदा हमारे एक प्रोग्राम में सीएम साहब सैयद मुराद अली शाह उन्होंने अनाउंस किया कि जब तक लेप्रेसी कंट्रोल नहीं होता है सिंध गवर्नमेंट एमएलसी के साथ है। क्या बात है, वेरी गुड। और अभी भी है साथ। और आज ये है कि इनकी कंट्रीब्यूशन जो सिंध गवर्नमेंट की माजूर बच्चों के और हमारे जो ग्रांट मिलते हैं वो पूरे बजट के 40% है। माशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा खला आ गया, 15-20% के ऊपर आ गई 95 से, तो इसको सिंध ने तो थोड़ा सा सपोर्ट किया 40 के हवाले से, लेकिन वो जो गैप है 20-25-30% का, वो कैसे? नहीं, अब मैं उस तरफ आता हूँ, इसलिए मैं बता रहा था कि 90% से ज़्यादा पहले दे रहे थे। फिर हमने एक स्ट्रैटेजी वर्कआउट की कि कम से कम ये 50-50 पे पहुँचे कि 50 लोकली मिले, 50 बाहर। और अब मैं ये कह सकता हूँ बड़ी खुशी के साथ कि जो हमारे लोग हैं लोकल, उन्होंने वो हमारा जो टारगेट था वो पूरा कर लिया। 50% जो फंडिंग हमें लोकली हम रेस कर रहे हैं और बाकी जो है वो इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है। वेरी गुड। तो अभी भी मज़ीद और ज़रूरत है आपको इस हवाले से, क्योंकि ये तो काम चलता ही रहेगा और उसके अंदर जितना फंड ज़्यादा आएगा उसको और अच्छे तरीके से लेके चला जा सकता है। अगर आपके साथ कोई ज्वाइन होना चाहे मामूनत के हवाले से, कैसे आपको क्या कहते हैं इस इदारे के साथ मुंसलिक हो सकता है? देखिए, एक जो चैलेंज हमें अभी भी है कि जब आप एक इदारा डोनेशन पे चलाते हैं, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये सस्टेनेबल मॉडल है। आपके पास पैसे हैं, आपने दिए, कल को आपके पास नहीं, आप नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे? तो एक सस्टेनेबल मॉडल के लिए हमें ईयर टू ईयर एक स्ट्रगल करना पड़ता है। जी जी। अब जो सिंध गवर्नमेंट हमें पैसे दे रही है, ठीक है ना, जो हमारे बजट के पूरे 40% है, जिसमें ज़्यादा खर्चा भी यहाँ पर है, इसलिए एक हॉस्पिटल है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा लेप्रेसी भी सिंध में है, ठीक है ना। इस वक्त जो हमने लेप्रेसी एलिमिनेशन का एक मुहिम हमने चलाई है 2024 से 30, उसमें हमारे पूरे जो केस लोड है 70% हमारा केस जो है वो सिंध में है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से तो हो रहा है। फिर हमारे पास इंटरनेशनल 2-3 और भी डोनर्स आ गए हैं जो टीबी में सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा मर्सी कॉ हो गया, फिर वो फाउंडेशंस हैं कुछ इंटरनेशनल, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। मगर जो नीड इस वक्त आ रही है वो नीड ऐसी है कि जितने पैसे मिलते रहेंगे उतने हम वो नीड पे काम करते रहेंगे। मतलब कुछ डिपार्टमेंट फिर बंद ना हो, मतलब वो मुसलसल चलते भी रहे, वो ये चलते रहेंगे। ये हमारा जो, हाँ, हमारा ये जो दिल में जो हमारी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि काम चलता रहे। इस वक्त एक काम जो हमने शुरू किया है वो है डिसेबिलिटी, ये बच्चों में जो मजदूरी है। इसके अंदर ये भी होता है, वक्त मेरे पास बिल्कुल कम है, इसमें ये भी होता है कि एक बंदा चाहे वो 50 रुपये भी दे रहा है, 100 रुपये भी दे रहा है, $1 भी दे रहा है, उसकी नीयत बिल्कुल साफ़ है और उससे इतनी बरकतें हो सकती है। तो कैसे आपको ज्वाइन किया जाए? अगर बाहर के लोग अगर ये मेरा ये वाला प्रोग्राम देख रहे तो आपको कैसे फ़ंड चाहिए, किस तरीके से चाहिए, तो वो आप शेयर कर लें ताकि ये पैगाम आगे। देखिए, एक तो ये जो हमने माजूर बच्चों के लिए किया है, अब एक सेंटर चलाने के लिए आपको 3 करोड़ से 4 करोड़ की ज़रूरत पड़ती है सालाना, और कोई ऐसा डोनर नहीं है जो आएगा कहेगा कि हम आपको देते रहेंगे। इसलिए ये काम ऐसा तो नहीं है 1 साल 2 साल के बाद हम कहें कि अब बंद कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सिंध की है उसकी वजह से ये प्रोग्राम चल रहा है। फिर ये मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का जो प्रोग्राम चला रहे हैं, वहाँ पर भी ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि हम अगर OPDs हम 5 दिन करें या 6 दिन करें तो हमें 300-400 बच्चे रोज़ आएंगे। तो चूंकि हमारे पास फंड्स इतने नहीं है, हम 2-2 दिन करते हैं। ठीक है, फंड्स मिलेंगे तो हम और करेंगे। कोई व्हाट्सअप नंबर या कोई ऐसा नंबर जिससे अगर आपसे कांटेक्ट किया जाए और फिर आपके साथ बैठ के मीटिंग की जाए और डोनेशन देने वाले अफराद जो है वो आपसे ज्वाइन करना चाहे, तो कोई ऐसा नंबर है जो आप शेयर करना ये हमारी फंड रेजिंग एक डिपार्टमेंट है, जी जी, ठीक है ना, वो बहुत एक्टिव है इसमें। जो उनकी हेड मेरे साथ हैं इस वक्त, शायान फातिमा, तो उनसे आप ले लें, नंबर में दे दूँगा, ठीक है, और कांटेक्ट करवा दें। ये एक बहुत बड़ा काम होगा। लोगों साहब, आप कोई आखिरी में कोई पैगाम, कोई मैसेज इस प्लेटफॉर्म से हमारे पाकिस्तान के लिए अपनी उस मसीहा के हवाले से जिसने आपको इस
तरीके से लेके चली, उसके लिए कोई अच्छे अल्फाज कहना चाहें, फिर मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूँ। देखिए, मैसेज तो मैं वही कहूँगा जो हर बार लोगों को मैं कहता हूँ जब ये सवाल आता है कि डॉक्टर फाउ से किसी ने पूछा एक कॉन्फ्रेंस के बाद कि डॉक्टर फाउ आप हमारी यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं, तो उनका एक बड़ा एक मखसूस अंदाज़ था। पहले तो रुकी, फिर उनको देखी, मुस्कुराई, कहने लगी कि मैसेज के लिए पहले मुझे अपनी एक ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो उनकी जो ज़िंदगी थी वो हमारे लिए एक मैसेज है, और आप सब समझ सकते हैं कि उसकी क्या ज़िंदगी थी जी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए मतलब जी, वो दूसरों की खिदमत की। ठीक है, बहुत शुक्रिया लोग साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और मैंने इंट्रो के अंदर भी यही कहा था कि ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर रकम पैदा कर गए और जो अपने अंदर एक अंजुमन और एक ऐसी मिसाल कायम कर गए जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जिस तरह लोगों साहब ने आखिरी में मैसेज भी किया कि मुझे अगर मैसेज देना हो तो पूरी अपनी ज़िंदगी को एक मरतबा फिर उसी तरह प्रैक्टिस के साथ, उसी तरह मेहनत के साथ गुजारना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये वो लोग हैं जो अपने मैसेजेस के साथ, अपनी पैगाम के साथ वो दे गए कि अगर किसी की खिदमत करनी है तो सच्चे नीयत के साथ और ऐसन तरीके के साथ और अपने वक्त की जो कुर्बानी है वो ऐसी देनी है कि लोग जो है इसकी मिसालें दें। जैसे लोगो साहब ने बताया कि अगर वो अपनी बहन से मिलने के लिए भी जा रही हो, कह रही कि किसी और गाड़ी के अंदर मैं जा रही हूँ तो उसका पेट्रोल, उसका फ्यूल, उसका टाइम अगर ज़ाया हो रहा है तो मैं उसके साथ भी इंसाफ नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के जो काम करने वाले थे, ऐसे ही हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर लोग पैदा हो जाए और इसी तरह का काम का सिलसिला जारी रखे। मैं आज अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से सिंध की हुकूमत को कि जो इस MALC का इतना बड़ा सपोर्ट कर रही है और इतनी खामोशी के साथ ये काम हो रहा है। तो मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ और इस तरह के कामों को जारी और सारी रखेंगे। और जहाँ ये जो माइनस प्लस हो रहा है, अगर ये दोबारा चीफ एग्जीक्यूटिव साहब उनके साथ लोगों साहब बैठे हैं उनके साथ, तो ये जो खिला है इंशाअल्लाह ताला वो सिंध हुकूमत भी पूरा करने की कोशिश करेगी। और वो लोग जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे लिए भी, हमारी टीम के लिए भी, हमारे मालकान के लिए भी, हमारे CEO के लिए भी, जितने भी एंकर के लिए भी, हमारे लिए भी वो सदका जारी वाला सिलसिला का आगाज़ हो जाए, सदका जारी वाला सिलसिला जारी और सारी रहे। इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये अपील करना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करें और जो कुछ हो सके जो है फ़ंड रेजिंग के हवाले से जो काम है, 157 इदारे चल रहे और कोई काम जो है डिस्टर्ब ना हो, काम का सिलसिला मुसलसल जारी व सारी रहे, कहीं डिस्टर्बिंग ना हो। आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड इनको मुहैया करें ताकि ये उसी तवानाई के साथ, उसी सिलसिले के साथ अपने इस प्रोग्राम को जारी व सारी रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इसका अक्सर क़ुर्बत अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।